Hello, my dear brothers and sisters, my friends and family. I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और परिवारों, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में अभिवादन करता हूँ। I believe in Christ that you are doing well and you are safe. और मसीह में विश्वास करता हूँ कि आप सभी अच्छे और सुरक्षित हैं। My beloved, by the grace of God, we are into the second month of this year. मेरे प्यारों, प्रभु के अनुग्रह से हम इस वर्ष के दूसरे महीने में हैं। And let us see what the Lord is telling us today. और आज देखते हैं कि आज परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। If you have your Bibles, please turn your Bible to Isaiah chapter 43 verse 2. आपके पास पवित्र शास्त्र है तो आप यशायाह अध्याय के 43 अध्याय के दूसरे वचन पर जाएं। The Bible says, when you pass through the water, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. वचन कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, this is the word the Lord is giving us and He's encouraging us for this month. और मेरे प्यारों, यही वचन है जो परमेश्वर ने हमें इस महीने दिया है और इसके जरिए हमें प्रोत्साहित किया है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, we all pray every day in our lives asking God to take us out of our situations. मेरे प्यारों, हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, और प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारी तकलीफ़ों से, हमारी चुनौतियों से बाहर निकालें। We may be going through some sickness हो सकता है कि हम किसी बीमारी से जूझ रहे हों, and we asking God for healing, we asking God to take us completely out of that sickness. और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें चंगाई दे और हमें इस बीमारी से बाहर निकाले। We may be going through some loss हो सकता है हम किसी हानि से गुजर रहे हों, and we will be praying to God that please Lord take me completely out of this loss or the damage that I am going through. और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु हमें इस हानि से, इस नुकसान से बाहर निकाले हैं। We may be going through some broken relationship हो सकता है हम किसी टूटे संबंधों से, रिश्तों से गुजर रहे हैं, and we are asking God to take us completely out of that situation. और हम प्रार्थना करते हैं कि हमें इस स्थिति से, हम इसे टूटे हुए संबंधों से बाहर निकालें। My beloved, we normally and we commonly pray to God that please Lord take me out of this situation and circumstances. साधारण रूप से ही हम प्रार्थना करते हैं कि हमें इस चुनौतियों से, इस स्थितियों से परमेश्वर बाहर निकाले। But my beloved, today we are going to learn something. लेकिन मेरे प्यारों, आज हम कुछ सीखना चाहते हैं। We are going to change our prayer for some of our situations. आज हम अपनी प्रार्थनाओं कुछ स्थिति के लिए बदलना चाहते हैं, Because sometimes in our life, God doesn't take us out of the particular situation. क्योंकि कभी कभी परमेश्वर हमारी कुछ स्थितियों से हमें बाहर नहीं निकालता। Hallelujah. हालेलुया। It may be surprising or shocking for you to hear. ये आपके लिए हो सकता है बहुत आश्चर्यजनक हो, But whenever the Lord allows some things to happen in our lives, लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी आदेश करता है, हमारे जीवन में कुछ भी जो कार्य हैं वो समावेशित करता है, please trust me, there is always goodness behind that. आप मेरा विश्वास करें कि इसके पीछे ज़रूर कोई अच्छा कार्य ही है, And even with that, there is always a learning process. और उसके पीछे हमें सीख ही मिलती है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, we all go through so much of situations in our lives. मेरे प्यारों, हम अनेक प्रकार की स्थितियों से गुजरते हैं अपने जीवन में, And you can see that God never answers all our prayers. और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को जवाब नहीं देता। I mean to say, He doesn't take us out of all the situations and the challenges that we go through. मेरा मतलब है कि वो हर एक स्थिति, हर एक चुनौती जो हम गुजर रहे हैं, उन सभी से हमें बाहर नहीं निकालता। Hallelujah. हालेलुया। Those situations that the Lord never take us out, वो स्थितियाँ जिनसे हमें परमेश्वर बाहर नहीं निकालता, we must understand that that is our learning process. ये हमें समझना चाहिए कि हमें इस स्थिति से कुछ सीखना चाहिए। God either wants us to learn something परमेश्वर हमें उस स्थिति से कुछ सीख मिले ये चाहता है, or He is going to be with us in the midst of us and He is going to reveal His glory through the situation that we are going through.
और या तो उसी स्थिति में परमेश्वर हमारे साथ रहकर अपनी महिमा उस स्थिति में प्रदर्शित करता है ताकि उसके नाम को महिमा मिले। Hallelujah. हालेलुया। That's what we see in this verse. और हम इस वचन में यही देखते हैं। The Lord is telling that when you pass through the waters, I will be with you. परमेश्वर कह रहा है कि जब तू जल में से होकर जाएगा तो मैं तेरे संग रहूंगा। He is not telling us that He will take us out of the water. वो ये नहीं कह रहा है कि तुम्हें उस जल से वो निकाल He is देगा। not telling us He will take us out of the river. वो ये नहीं कह रहा कि वह हमें उस नदी से निकाल He देगा। is not telling us that He will take us out of the fire or the challenges that we're going through. वो ये नहीं कह रहा कि वो तुम्हारे साथ जो चुनौतियां हैं उस अग्नि से तुम्हें बाहर निकाल देगा। But what the Lord is telling us today is, कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है आज you will pass through the waters, कि तुम जल में से होकर you जाओगे, will pass through the rivers, तुम नदियों में से होकर you जाओगे, will pass through the fire, कि तुम अग्नि में से होकर but जाओगे, I will be with you. लेकिन उस स्थिति में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। What else we need in this life, my beloved? मेरे प्यारो, इस जीवन में इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? Hallelujah. हालेलुया। So let us change our prayer for some challenges that we're facing in our life. तो हम अपनी प्रार्थनाएं बदले कुछ ऐसी स्थितियों के लिए कि जब हम चुनौतियों से गुजर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, let us take the life of Apostle Paul. मेरे प्यारो, हम प्रेरित पौलुस का जीवन देखते हैं। If you read in 2 Corinthians chapter 12, अगर आप पवित्र शास्त्र के 2 कुरिन्थियों के 12वें अध्याय को पढ़ते हैं, from verse 7 to 10, वचन 7वें से 10 तक, the Bible talks about his thorn in the flesh. जो वचन है वो बताता है पौलुस के देह में जो कांटा चुभा है। And also the Bible says that he pleaded to the Lord 3 times about this. और वचन ये भी कहता है कि पौलुस ने परमेश्वर से 3 बार विनती करी, प्रार्थना करी, But God never take him out of the thorn, लेकिन परमेश्वर ने उस कांटे से उसे बाहर ना निकाला। but instead the Bible says that the Lord answered him in this way. बल्कि वचन के अनुसार परमेश्वर ने उसे इस प्रकार से जवाब दिया। The Lord says, "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in your weakness." और वचन कहता है कि और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में भी सिद्ध होती है। And in verse 10 Paul says, "Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong." और वचन 10वां कहता है, इसी कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं और दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। When I am weak, I am strong. जब मैं निर्बल हूँ मैं बलवंत होता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। When I'm going through infirmities, I become more stronger. जब मैं कमियों से गुजर रहा हूँ तो उस कमी में भी मैं बलवंत होता हूँ। When I'm going through sickness, I become more stronger. मैं जब बीमारियों से गुजरता हूँ तो उसमें मैं बलवंत होता हूँ। Because I am not alone, the Lord is with me. क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, look at the life of Joseph. मेरे प्यारो, यूसुफ का जीवन आप देखें। He was a slave in Egypt. वो मिस्र में एक सेवक था, एक दास था। Imagine how he was feeling missing his family. आप एक इमेजिन करें कि किस प्रकार से वो अपने परिवार को मिस कर रहा होगा, उनको याद कर रहा होगा। So much he would have prayed to God, "Lord, please take me out of this country. I want to go back to my dad and mom." आप ये सोचकर देखिए किस प्रकार से वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा होगा कि परमेश्वर, मैं अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ, मुझे इस स्थिति से बाहर निकालें। He would have pleaded before God, "Lord, this is not the life that I was dreaming about." वो परमेश्वर से निवेदन कर रहा होगा कि ये जीवन मैं नहीं चाहता था, इस जीवन से मैं बाहर आना चाहता हूँ। Please make a way and take me out of this land. कि मुझे इस जमीन से मुझे बाहर निकालें। And the Lord never heard him. लेकिन परमेश्वर ने उसकी नहीं सुनी। But the Bible says in Genesis chapter 39 verse 2, लेकिन उत्पत्ति के अध्याय 39 का 3रा वचन कहता है, the Bible says the Lord was with Joseph and he was a successful man. और वचन कहता है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वह सफल था। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, imagine he was a slave and he was successful.
आप ये कल्पना करें कि यूसुफ था, वो दास था लेकिन तब भी सफल था। He was under bondage, but the Lord was with him. वो बंधा हुआ था लेकिन तब भी परमेश्वर उसके साथ था। Maybe you are going through some sickness, but the Lord is with you. हो सकता है आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं लेकिन उसमें भी परमेश्वर आपके साथ है। You praying for a complete and perfect healing, but it's not happening. आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको चंगाई मिले लेकिन तब भी परमेश्वर आपकी नहीं सुन रहा। But the Lord is with you. लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। My beloved, मेरे प्यारों, let us learn to invite God into our challenges. मेरे प्यारों, आज हम ये सीखते हैं कि हम परमेश्वर को अपनी चुनौतियों में आमंत्रित करें, उन्हें बुलाएं। Let us learn to invite God in our sickness. परमेश्वर को अपनी बीमारियों में बुलाएं। Hallelujah. हालेलुया। Because when you are weak, the Lord will make you stronger. क्योंकि जब आप कमजोर हैं परमेश्वर उसमें आपको बलवंत करेगा। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, when that little boy came to Jesus with 5 loaves and 2 fishes, मेरे प्यारों, जब एक छोटा बच्चा 5 रोटी के साथ और 2 मछली के साथ यीशु के पास आया, you can see there was so much of lackness because 5,000 people won't be able to eat that. आप देख सकते हैं कि वो इतना कम था कि वो 5,000 लोगों को खिलाने के लिए काफी नहीं था। Hallelujah. हालेलुया। But the Lord Jesus never take them out of that place. लेकिन परमेश्वर यीशु ने उन 5,000 लोगों को उस जगह से बाहर लेकर नहीं गए। Instead, he made everybody sit in the same place where there was lackness. और बल्कि यीशु ने उन सभी 5,000 लोगों को उसी जगह पर बिठाया जहां पर खाने की कमी थी। Hallelujah. हालेलुया। He made them sit and he took the 5 loaves and 2 fishes and he raised his hands towards heaven and he prayed to the heavenly Father. और यीशु ने उन 5 रोटी 2 मछली को उठाया और परमेश्वर से प्रार्थना की। What you think Jesus would have prayed? क्या सोचते हैं आप कि यीशु ने क्या प्रार्थना की होगी? My beloved, मेरे प्यारों, I believe that Jesus would have invited the heavenly Father, the Jehovah Jireh, the Lord who provides us. मेरे प्यारों, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ने परमेश्वर यहोवा को आमंत्रित किया होगा, वो परमेश्वर जो यहोवा यीरे है और जो वो हमारी सभी ज़रूरतों को मिलाता है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, invite our Lord into your lackness. मेरे प्यारों, परमेश्वर को आमंत्रित करें अपनी कमियों में। Invite the Lord into your bondages. परमेश्वर को आमंत्रित करें जब आप बंधे हुए हैं। Maybe God is not taking you completely out of your situations or lackness. Invite him to that place. हो सकता है परमेश्वर आपको पूर्ण रूप से आपकी चुनौतियों से बाहर नहीं निकाल रहा है, तो उस चुनौती में आप परमेश्वर को आमंत्रित करें। Hallelujah. हालेलुया। Look what happened in the life of Daniel. आप देखें कि दानियल के जीवन में क्या हुआ। Look what happened in the life of Shadrach, Meshach and Abednego. आप देखिए कि शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के जीवन में क्या हुआ। God did not take them out of that fire, परमेश्वर ने उन सबको अग्नि से बाहर नहीं निकाला, but he came down to be with them and he was there in that fire. वो परमेश्वर नीचे आया और उन सबके साथ उस अग्नि के बीच में रहा, उन सबके साथ रहा। God did not take Daniel out of the lion's den, परमेश्वर ने दानियल को शेर की गुफा से बाहर नहीं निकाला, but instead the Lord came down to be with Daniel. बल्कि परमेश्वर दानियल के साथ रहा। He sent his angels and shut the mouth of the lions. परमेश्वर के स्वर्गदूत दानियल के साथ रहे और उसने सिंह का मुंह बांध दिया। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, learn to invite God into your challenges and your circumstances. मेरे प्यारों, परमेश्वर को अपनी चुनौतियों में, अपनी स्थितियों में आमंत्रित करना सीखें। The psalmist says in Psalms chapter 23 verse 4, भजन संहिता का 23वां अध्याय का 4था वचन कहता है, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, I fear no evil, for you are with me, and your rod and your staff that comforts me. तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। Hallelujah. हालेलुया। What he's saying is, Lord, you are with me in the shadows of death. और वो क्या कह रहा है कि परमेश्वर आप मेरे साथ हैं कि मैं घोर अंधकार से भरी तराई में भी हूँ। Hallelujah. हालेलुया। The world is upside down because of this COVID.
आप देख सकते हैं कि ये संसार उलट पुलट गया है इस कोविड की वजह से, It's a shadow of death everywhere, my beloved. कि हर जगह घोर अंधकार है मेरे प्यारों। But the Lord is with you. लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। The Lord is with you in your sickness. परमेश्वर आपके साथ आपकी बीमारियों The में भी Lord is है। with you in your tears. आपके आंसुओं में परमेश्वर आपके साथ है। The Lord is with you in all the challenges and the situation that you are going through. परमेश्वर आपके साथ है उन सभी स्थितियों में, उन सभी चुनौतियों में जो आप गुजर रहे हैं। So let us stop praying for a complete healing. तो आज हम परमेश्वर से सिर्फ पूरी चंगाई के लिए प्रार्थना करना बंद करें, Because sometimes the Lord never hears our prayers. क्योंकि कभी कभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। The reason why is that He wants to be with us and glorify His name through our weakness. कारण क्योंकि परमेश्वर उस निर्बलता में हमारे साथ रहकर अपनी महिमा को बढ़ाता है। When you pass through the waters, जब आप जल में से होकर चलते हैं, when you pass through the river, जब आप नदियों में से होकर चलते हैं, and even when you walk through the shadow of death, और जब भी तब आप अंधकार से भरी हुई तराइयों में चल रहे हैं। my beloved, fear no evil, मेरे प्यारों, किसी भी बुराई से ना डरें, because the Lord is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। In this month of February, इस फरवरी के मंथ में invite God into your life. परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित Invite करें। God into your business. परमेश्वर को अपने व्यवसाय में आमंत्रित करें। Invite Him into your family. परमेश्वर को अपने परिवार में आमंत्रित करें। Invite Him into your relationships. परमेश्वर को अपने रिश्तों में आमंत्रित The करें। Lord will be with you परमेश्वर आपके साथ होगा and you will be successful. और आप सफल होंगे। Hallelujah. हालेलुया। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे And may the Lord bless this word. और परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। Amen. आमीन।